Tell me. क्वेश्चन सॉल्व हो गया है जो आपको दिया गया था। How many students are physically present here? No one is replying. Ansika Pandey is here. And where are others? Anushka Raj, Shreya Agrawal, Tanmay, Sneha, Kapil Singh. Okay. Anushka, have you done a question which I have given to you? Siddhant Vikram. ठीक है, अगर कर सकते हो आप लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट डाउन if sec x minus tan x, if sec x minus tan x equal p, if sec x minus tan x equal p, then find sec x. This is the question. If sec x minus tan x equal p, then find sec x. How many can do this question? Sec x minus tan x equal p, then find sec x. स्टूडेंट या तो या यस का रिप्लाई करो या नो का रिप्लाई करो, ये कुछ तो रिप्लाई करो। आप सॉल्व कर लोगे, नहीं कर लोगे, कर रहे हो। आइडेंटिटी एक्चुअली स्नेहा इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं अप्लाई। हाँ, जो आइडेंटिटी आपको sec x माइनस tan x में बताया गया है वही आइडेंटिटी लगेगा, बाकी कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं लगेगी।
ठीक है ना। sec x माइनस tan x इक्वल p दिया हुआ है और आपको एक आइडेंटिटी बताया गया था sec x माइनस tan x इक्वल 1 अपॉन sec x प्लस tan x। तो डेफिनेटली sec x plus tan x is what? 1 upon sec x minus tan x। ये एक आइडेंटिटी आपको कहे थे कि याद रखना, ठीक है। sec x minus sec x plus tan x equal 1 upon sec x minus tan x। Here sec x minus tan x is given, so sec x plus tan x equal to 1 upon how much? देखो sec x minus tan x equal p given, so put there as a p and consider this as a equation 1 and this is equation 2। Now add these two from first and second। if you are adding, अगर दोनों ऐड कर रहे हैं तो माइनस tan x और प्लस tan x will cancel out, then sec x plus sec x equal 2x, 2 sec x equal p plus 1 upon p। So this is equal to 2 sec x equal to p into p square plus 1। So this is p square plus 1 upon p। Now divide 2 in the denominator, then the answer is sec x equal p square plus 1 upon 2p। This is the value of sec x, ठीक है। p के टर्म में आएगा, आप आइडेंटिटी यूज करोगे, आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद 2 sec x इक्वल p स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इस 2 से डिवाइड कर देना, p के टर्म में आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा sec x का। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है साइन टू द पावर 8 थीटा, साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस cos to the power 8 theta equal sin square theta minus cos square theta 1 minus 2 sin square theta cos square theta, 1 minus 2 sin square theta cos square theta। This is the question। Sin to the power 8 theta minus cos to the power 8 theta equal sin square theta minus cos square theta, and in the second bracket 1 minus 2 sin square theta cos square theta। Clear? Now to solve this question, you know, sin to the power 8 theta can be written as sin to the power 4 theta whole square minus cos to the power 4 theta whole square। Now this is the of the identity of the form a square minus b square, so apply a plus b, a minus b। In the first bracket it is a plus b sin to the power 4 plus cos to the power 4, and in the second bracket a minus b sin to the power 4 minus cos to the power 4। Again here sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta, this can be written as sin square theta plus cos square theta
होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी आइडेंटिटी आपको लिखा चुके हैं कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को डायरेक्ट कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। बट यहाँ पे भी देखो, वहां भी देखना है कि आपको पूछ क्या रहा है, वहां भी आपको चेक करना है पूछ क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक टर्म आपको ध्यान देना है, तो इस टर्म को भी लेके चलना है आपको, ठीक है। तो जस्ट अप्लाई द आइडेंटिटी टू सॉल्व द क्वेश्चन के अभी इसको ऐसे लेके चलते हैं। इसको देखो, साइन टू द पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस cos square theta whole square. Again, this one will open into bracket in identity. Sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta, और ये a plus b, a minus b. So a plus b sin square theta plus cos square theta, first bracket, and the second bracket sin square theta minus cos square. अब sin square theta plus cos square theta is 1, so only is sin square theta minus cos square theta. So the remaining are दो टर्म रह जाएंगे, sin square theta minus cos square theta, और सेकेंड ब्रैकेट sin to the power 4 theta plus cos to the power 4। अब देखो ये टर्म तो आ चुका है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगला टर्म sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos। a प्लस b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे। नोट डाउन स्टूडेंट्स, नोट डाउन। रिटर्न नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इसके अगले स्टेप पे। दिस मे बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा को कितना लिखते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको बता चुके हैं, डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब द वैल्यू ऑफ दिस वन इज 1, so this is sin square theta माइनस cos square theta, इसकी वैल्यू 1 हो गया, 1 माइनस 2 sin square theta cos square, and this one was to prove. So no doubt. Shreya Agrawal, are you present here? अच्छा, अनुष्का, गरिमा, you are not replying students, why?
कम से कम यस नो का जवाब तो देते चलो। क्वेश्चन क्लियर है? अभी एक दो और मतलब सेशन आपको इंट्रोडक्शन जो बेसिक है वो कराएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। वहां से आपको एक्सरसाइज तेजी से लगेगा। एक और दो बेसिक बचे हुए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक ए 3 सेक ए प्लस टेन ए सेक ए, क्वेश्चन लिखो, सेक ए प्लस टेन ए सेक बी प्लस टेन बी सेक सी प्लस टेन सी इक्वल सेक ए माइनस टेन ए सेक बी माइनस टेन बी सेक सी माइनस टेन सी। पहले क्वेश्चन नोट करो। सेक ए प्लस टेन ए सेकेंड ब्रैकेट सेक बी प्लस टेन बी थर्ड ब्रैकेट सेक सी प्लस टेन सी इक्वल सेक ए माइनस टेन ए सेक बी माइनस टेन बी सेक सी माइनस टेन सी। Then then so that each side is equal to plus minus 1. Then so that each side is equal to plus minus 1. ठीक है, मतलब आपको शो करना है कि अगर सेक ए प्लस टेन ए सेक बी प्लस टेन बी सेक सी प्लस टेन सी इक्वल सेक ए माइनस टेन ए सेक बी माइनस टेन बी सेक सी माइनस टेन सी के इक्वल है, तो हर एक साइड जो है प्लस माइनस 1 के इक्वल होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है सेक ए प्लस टेन ए का रिवर्स होता है सेक ए माइनस टेन ए। तो जस्ट ये जो लेफ्ट साइड के आइडेंटिटीज है उनका रिवर्स में आइडेंटिटीज यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ है, 1 अपॉन करके लिखा हुआ है। मतलब अगर ये टोटल x होगा, ये टोटल अगर लेट कर लो कि टोटल आइडेंटिटी इक्वल टू x, अगर आप यहां से लेट कर रहे हैं, अगर लेट कर रहे हैं कि सेक ए प्लस टेन ए सेक बी प्लस टेन बी सेक सी प्लस टेन सी इक्वल x। अगर इसको x लेट कर ले तो राइट साइड में जो आइडेंटिटी है वो 1 अपॉन x होगी, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी इसका जस्ट रिवर्स है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, अगर इसको x कंसीडर किया है ये जो होगा 1 अपॉन x आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x स्क्वायर इक्वल 1 या x इक्वल plus minus 1. So this is the solution. Each side is equal to plus minus 1. Note down. Note down, students.
written नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आप लोगों के एग्जाम में भी आता है, पूछा जाता है, और कभी किसी कंपटीशन में भी बैठोगे तब भी वो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो पर इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा। ax अपॉन cos थीटा, क्वेश्चन नंबर ax अपॉन cos थीटा प्लस bx सॉरी by अपॉन sin थीटा इक्वल a स्क्वायर माइनस, और लिसन स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो कहीं न कहीं आपके बुक में है। ठीक है, हम आपके बुक के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके एक जगह कलेक्ट करके जो इम्पोर्टेंट या बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनको बता रहे हैं। आपको सारे क्वेश्चन आपके बुक में कहीं न कहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ax अपॉन cos थीटा प्लस by अपॉन sin थीटा इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और एक और भी है ax sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस by cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा equal 0. These two are given, then find the value of ax to the power 2 by 3 plus by to the power 2 by 3। ये क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन समझो पहले। एक कंडीशन दिया हुआ है, एक इसको मान लो पहला कंडीशन ax अपॉन cos थीटा प्लस by अपॉन sin थीटा इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगला कंडीशन ax sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा minus by cos theta upon sin square theta equal 0. There are two conditions given, then you have to find the value of ax to the power 2 by 3 and by to the power 2 by 3। मतलब चाहे जैसे भी हो, अगर ax और by की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे तो यहाँ वहां इनकी वैल्यू रख करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कम टू से हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज टू। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आगे सॉल्यूशन बताते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया? पहले फ्रॉम इस इक्वेशन से लेते हैं, इस इक्वेशन से लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम सेकंड this can be written as ax sin theta upon cos स्क्वायर थीटा। देखो ये माइनस है
इधर राइट साइड में 0 है, इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे, दिस वन विल बिकम dy cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर। यस, अब ax और by, ax में by को इधर डिवाइड कर दो, ax अपॉन by फाइंड करो, ये आ जाएगा ax और ये by इधर ट्रांसपोज कर देंगे, by इक्वल ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा sin क्यूब थीटा, and you know cos theta upon sin theta equal cot theta, so this is equal to cot q theta, cot q theta। तो यहां से हम रब कर देते हैं, this can be written as ax upon dy equal cot q theta, और सिंपली cot theta इक्वल, देखो अगर जब ये क्यूब है और अगर इस क्यूब को हटाएंगे इस पे रिवर्स करके 1/3 आएगा, मतलब ये आ जाएगा ax अपॉन dy टू द पावर 1/3 मींस ax टू द पावर 1/3 अपॉन dy टू द पावर 1/3। yes, now you know cot theta equal base upon perpendicular, tan theta equal perpendicular upon base होता है, तो cot theta equal base upon perpendicular, so this one is base, this one is perpendicular, so we have to find the hypotenuse of that right angle triangle, so note down so that I can rub it, इतना note कर लो। थोड़ा फास्ट करो ताकि टाइम भी लगभग 5-7 मिनट बचा होगा। कपिल, आर यू हियर? कपिल सिंह, देवांश, अच्छा ठीक है, कुछ बोला करो यार, बिल्कुल साइलेंट मोड में बैठे हो। ओके, now here this is cot theta equal, अब यहां से cot theta, ये this one is base, ये बेस हो गया और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देना है परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर हो गया, तो आपको हाइपोटेनियस फाइंड करनी है, हाइपोटेनियस h इक्वल यू नो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो दिस इज ax टू द पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, यही होगा ना भाई, हाइपोटेनियस इक्वल अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 आ गया और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो b टू द पावर 2/3 आ गया, ये आपको हाइपोटेनियस मिल गया। तो आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, किसी राइट ट्रायंगल का, किसी भी राइट ट्रायंगल का अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस है, इसकी वैल्यू हो गया ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर आपको मिल गया by टू द पावर 1/3 और बेस मिल गया ax टू द पावर 1/3,
इसको बेस कंसीडर किया है। बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस वी हैव गेट। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड, so find the value of ax to the power 2 by 3 plus by to the power 2 by, ये आपको प्रूव करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। आप क्या करोगे, जो पहला इक्वेशन है उस इक्वेशन में चलेंगे, क्योंकि वो भी इक्वेशन आपको नोट आउट है, इसको नोट कर लें ताकि पहले इक्वेशन में चलते हैं। रिटर्न now the first is ax upon cos theta plus dy upon sin theta equal a square minus, now just put the value of cos theta and sin theta from here. You know cos theta equal base upon hypotenuse, base means ax to the power 1 by 3. So put here ax upon ax to the power 1 by 3 upon hypotenuse under root ax to the power 2 by 3 plus dy to the power 2 by 3। ठीक है ना, cos थीटा की वैल्यू रखा है, cos ax तो रहेगा ही, और cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड प्लस dy अपॉन sin theta equal perpendicular upon hypotenuse, so dy to the power 1 by 3 upon, ये देखो हाँ, upon under root ax to the power 2 by 3 plus dy to the power 2 by 3 equal a square minus, जस्ट इसमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू यहां से रखकर वहां पे रखिए, और इन दोनों में देखो डिनोमिनेटर, ये जो दोनों टर्म है ये ऊपर इनके में चला आएगा और ये कॉमन होकर के बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये टर्म बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ax to the power 2 by 3 plus by to the power 2 by 3, ये इतना कॉमन बाहर होकर के और ब्रैकेट में बचेगा। देखो इसका ax to the power 1 और ax to the power 1 by 3, तो जब 1 में से 1 by 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 by 3, तो ये बन जाएगा ax to the power 2 by 3 और प्लस dy to the power 2 by 3 equal a square minus b square, ये इतना रह जाएगा। ठीक है, नोट डाउन। अब देखो ये भी ax to the power 2 by 3 है, dy to the power 2 by 3 है, और ये भी सेम है, और इसका पावर हो गया 1 by 2, इसका पावर 1 हो गया। भाई अगर ये स्क्वायर रूट हटाएंगे, इसको रब कर दें, इसको रब कर दें, अगर इसको रब कर दे रहे हैं, देखो इसका ax to the power 2 by 3 plus dy to the power 2 by 3, और इस पूरे का ब्रैकेट कितना हो गया 1 by 2, क्योंकि अंडर रूट 1 by 2 जाएगा, और ये आ जाएगा ax to the power 2 by 3 plus dy to the power 2 by 3 equal a square minus, ये 1 by 2 है, इसका पावर 1 है, तो 1 by 2 और 1 by 2 plus 1 3 by 2, the total is ax to the power 2 by 3 plus dy to the power 2 by 3 to the power
t/2 इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और आपसे पूछा भी यही था कि फाइंड द वैल्यू। अब इसका देखो ये 3/2 है ना, ये 3/2 है, तो इसको उधर लेकर के शिफ्ट कर दो, पावर हटा दो। ax टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये उधर जाकर के पलट जाएगा 2/3 हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ax टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। So the value of this one is a square minus b square to the power 2/3। जस्ट उसी का पावर उल्टा आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था कि जस्ट सेकेंड इक्वेशन से ax अपॉन by निकाल करके हाइपोटेन्यूस लेना था। फिर फर्स्ट में cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू रख करके सिंपली by जैसे ही करेंगे x टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 की वैल्यू आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टू द पावर 2/3 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, so thank you for this session। Okay.